Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. We will discuss about the different applications and the linear applications of the operational amplifier in the previous lectures. Today, we are going to start our next chapter, that is filters and oscillator. This chapter consists of total 18 marks and it is having the different types of filters along with the oscillator. Before starting the unit or the chapter for filters and oscillator, you must have to know about the vision, mission, program educational outcomes of the Electronics and Telecommunication Department. So let's start with the vision. Here, in the last lectures or in the last units, we have already discussed about this vision and mission of the electronics and telecommunication. We just recall this vision and mission for your beneficiary. The vision of this unit or vision of the electronics and telecommunication department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. टू नर्चर मीन्स ऐसे प्रोफेशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स को आप लोगों को डेवलप करना है जो इंडस्ट्रियल नीड है. ऐसे एक इंडस्ट्रियल नीड को इसमें लेके मतलब क्या बोलेंगे उसको आप लोग उसको सोसाइटी में कैसे उसको ज़रूरत है उस टाइप से हम लोग हमारा विजन रहेगा कि हम लोग उस टाइप से प्रोफेशनल डिप्लोमा इंजीनियर्स लोगों को दें. Then, what is the mission of the Electronics and Telecommunication Department? First, imparting quality education for to meet society and the industry needs. हम लोग बच्चों को ऐसा क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे जो कि सोसाइटी और इंडस्ट्री की नीड रहेगी. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. जो इथिकल एजुकेशन रहेगा या फिर जो भी वर्क वो करेंगे उसका आउटकम क्या रहेगा, ऐसा आउटकम बेस्ड एजुकेशन दैट इज OBE हम लोग बच्चों को और उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करना हमारा मिशन रहेगा. Inculcating creative thinking through the innovation and the co and extra curricular activities amongst the student. हम बच्चों में एक क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू द इनोवेशन मतलब इनोवेशन के थ्रू बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे थ्रू द को करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन. बच्चों में एक लीडरशिप स्किल और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी की एक ज़रूरत, जिस टाइप का एम्प्लॉई उन्होंने होना चाहिए उनके स्किल को एनहांस करने की कोशिश हम करेंगे. Then the last one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनका नॉलेज और स्किल उनके बढ़ने चाहिए, इसकी कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे. Then last one is the program educational objectives. What are the program educational objectives of electronics and telecommunication department? One is the provide job oriented skill set, socially responsible and environment friendly solution. मतलब बच्चों में ऐसा स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे उसमें जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद में फ्रेंडली सॉल्यूशन दे सके टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड. मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो लोग सोसाइटी में इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ये भी हमारा एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा. देन the adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher education. हम लोग बच्चों में ऐसा एक मतलब एक कला ऐसी बच्चों में प्रोवाइड करेंगे कि उनमें से वो लोग मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में भी वर्क कर सके विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड और वो हायर एजुकेशन के लिए भी हम बच्चों को प्रमोट कर सके. मतलब वो डिप्लोमा के बाद जॉब भी कर सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन उनकी अगर इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं. इन हिसाब से हम बच्चों को दोनों तरीके से उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. देन provide solutions to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. ऐसा मतलब स्टूडेंट्स ऐसे प्रोवाइड हो या फिर ऑब्जेक्टिव हमारा एक ऐसा रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे
खुद के डेवलपमेंट और एज ए टीम मेंबर तो कैसा भी वर्क करे, या तो वो इंडिविजुअली करे या फिर टीम में करे, उनका जो वर्क है वो कम्युनिकेटिवली इफेक्ट होना चाहिए, मतलब उनका कम्युनिकेशन के साथ साथ उनका वर्क भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये भी कोशिश हमारी रहेगी। देन व्हाट इज द कोर्स आउटकम? द कोर्स आउटकम फॉर दिस यूनिट इज मेंटेन फिल्टर्स एंड ऑसिलेटर यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फिल्टर के डिज़ाइन करेंगे, ऑसिलेटर को डिज़ाइन करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसको ये सब यूज़ करने के बाद उसको कैसे मेंटेन करना है ये भी हम लोग ये यूनिट में पढ़ने वाले हैं। CO and the PO mapping. Here the CO4 getting mapped with the PO 1, 2, 3, 4, 6 and 7. आप लोगों को फिल्टर्स के डिज़ाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल बेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे PO1 को मैप किया। उसके बाद में कुछ हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, उसका एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप हो रहा है, क्योंकि उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन आफ्टर दैट देयर आर सम प्रैक्टिकली बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हियर। एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स भी लगेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटल किट भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे PO3 भी मैप हो रहा है। देन जो भी सर्किट्स आप डिज़ाइन कर रहे हो, सर्किट्स में आप लोग क्या करने वाले हो, डिज़ाइन करने वाले सर्किट्स में आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर सर्किट्स सोसाइटी के लिए ये डिज़ाइन करोगे उसमें भी आप लोग फिल्टर्स का यूज़ करने वाले, इसलिए आप लोगों का PO4 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन PO6 एंड PO7 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड आप लोग इंडिविजुअल और टीम मेंबर में भी काम कर सकते हो या फिर कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले, इसलिए आप लोगों का PO6 भी यहाँ पे मैप हो रहा है अलॉन्ग विद द PO7। दिस इज द CO एंड PO मैपिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। मतलब आप लोग कभी भी पढ़ने के लिए जाते हो तो व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आउटकम्स इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स आउटकम, मतलब आप लोगों का ब्रांच है उसका आउटकम, और CO दैट इज द कोर्स मतलब लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, दिस इज द कोर्स, उसका आउटकम। ये दोनों का मैपिंग कितने लेवल तक हो रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस हिसाब से आप लोगों का सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। देन द लर्निंग आउटकम्स। अभी देखो लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या, जैसे ही आप लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसका कंप्लीशन होने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मतलब व्हाट विच वर्क यू आर गोइंग टू बी एबल। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कि आप लोग वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप, जो भी फिल्टर आपका दिया रहेगा उसका वर्किंग आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। देन एक्सप्लेन विथ स्केचेस द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर। उसके कुछ प्रोसीजर रहेगी डिजाइनिंग की, फिल्टर डिजाइनिंग की प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन से ऑर्डर का कौन सा फिल्टर है। देन उसके बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर। प्रिपेयर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ filter with justification. Now let's start with the types of filter. This is the second part of the high pass filter, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर देखा था, वही दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर भी डिज़ाइन किया था, सेम डिज़ाइन करना है। तो सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर कैसे फॉर्म होता है, तो मतलब एक सिंपली आप लोगों को क्या करना है, जैसे सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर डिज़ाइन करे थे वैसे ही डिज़ाइन करना है, सिर्फ बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। बराबर है, जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर में किया था सेम आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर में भी करना है। हियर द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर हैविंग द स्टॉप बैंड रिस्पॉन्स, इसमें क्या रहेगा, स्टॉप बैंड रिस्पॉन्स जो रहेगा वो रहेगा आपका it is plus 40 dB per decade, 40 dB per decade, and roll off. तो second order filter along with the first order filter are designing हायर ऑर्डर फिल्टर, मतलब आप लोग इससे भी ज़्यादा हायर ऑर्डर के अगर डिज़ाइन करना चाहते हो तो यू कैन बी एबल टू डिज़ाइन दैट काइंड ऑफ हाई पास फिल्टर। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आप लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू डिज़ाइन
सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, फिर उसके बाद में कैसे इंटरचेंज किया था, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, उसने उसके ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, और कैसे उसका डेरिवेशन आया था, और कैसे आप लोगों ने कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यूज भी कैलकुलेट की, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर आप लोग खत्म करते हैं अपन, तो वैसे ही आप लोग क्या कर पाओगे, सबसे पहले तो यू कैन बी एबल टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। उसके बाद में आप लोग उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे, उसको डिजाइन भी कर पाओगे, उसका एक डेरिवेशन भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। दिस सर्किट डायग्राम shows the second order high pass filter. Second order high pass filter, as it is a high pass filter, it is having the lower cutoff frequency. As it is the high pass filter, it is having the lower cutoff frequency. तो आप लोगों को यहाँ पे the lower cutoff frequency given by lower cutoff frequency given by FL is equals to 1 upon 2 pi under root of R1 R2 C1 C2 R1 R2 C1 C2. Then if R1 is equals to R2 is equals to R and C1 is equals to C2 is equals to C, बराबर है, then we will get the equation as FL is equals to 1 upon 2 pi R into C, बराबर है। Now the voltage gain magnitude क्या होता है, the voltage gain magnitude ऑफ हाई पास फिल्टर क्या होता है, तो वो होता है VO अपॉन V इन इज इक्वल्स टू AF अपॉन 1 प्लस FL अपॉन F to the power 4. This is a voltage gain of the high pass filter. Now द गेन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कैसे होता है। सो द गेन ऑफ द हाई पास फिल्टर इज AF इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1 is equals to 1.586, सिमिलर एज दैट ऑफ द कैसे लोअर सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, बराबर है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी स्केलिंग और डिजाइन एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे आप लोगों का लो पास फिल्टर का था, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर का। देन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका कैसे रहेगा, 40 dB पर डिकेड जा रहा है यहाँ पे, तो ये रहेगा इस टाइप से। द फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन द गेन एंड यहाँ पे F, राइट। तो आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इस हिसाब से रहने वाला है। उसके बाद में दिस इज 40 dB प्लस 40 dB पर डिकेड, 40 dB पर डिकेड। उसके बाद में दिस इज और गेन ऑफ द फिल्टर और दिस इज और कैलकुलेटेड गेन ऑफ द फिल्टर, ओके। दिस इज अ स्टॉप बैंड, मतलब यहाँ पे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी पास नहीं होगी और यहाँ पे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी पास होगी। सो दिस इज अ पास बैंड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। समझ में आया सभी को। सेम प्रोसीजर है जैसे अपन ने सेकेंड ऑर्डर लोअर पास फिल्टर के लिए किया था, लो पास फिल्टर के लिए। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे C1 R1 C2 R2 ऐसे दो कैपेसिटर और रजिस्टर की सिर्फ पोजीशन चेंज करना है। उसी सेम डिज़ाइन रहेगा आप लोगों का जैसे आप लोगों ने सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर के लिए किया था। एग्जैक्टली सेम वर्किंग रहेगा, नो चेंज, ओनली द फ्रीक्वेंसीज आर देयर। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी आप लोग पास कर रहे हो,
ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने आर और सी जैसे सेम प्रोसीजर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम फिल्टर जो डिज़ाइन किया था, जो प्रोसीजर जो स्टेप्स फॉलो करनी थी, सेम स्टेप्स आप लोगों को डिज़ाइनिंग के लिए फॉलो करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। देखो, दिस इज अ न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। तो न्यूमेरिकल दिया है आप लोगों को क्या, डिज़ाइन अ सेकेंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर। क्या बोला है, डिज़ाइन अ सेकेंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर विथ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलोहर्ट्ज, ड्रॉ द डिज़ाइन सर्किट एंड स्केच। बराबर है। मतलब आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है तो ध्यान में रखना है कि वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर, या फिर अगर ऐसे ही दिया गया डिज़ाइन हाई पास फिल्टर तो यू हैव टू चूज़ कि यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है। बराबर है। वहाँ अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो आप लोगों का कौन सा है यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है इसकी। बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर ना होते हुए यहाँ पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए आप लोगों को, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर वो हायर दी रहती तो अपन कौन सा लो पास फिल्टर को यहाँ पे डिजाइन करते। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट गिवन FL इज इक्वल्स टू 1.5 किलो हर्ट्ज। FL इज इक्वल्स टू 1.5 किलो हर्ट्ज। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ दिया गया है, क्या दिया है आप लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट। देन सेकेंड स्टेप इज कि वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ सी। तो लेट अस कंसीडर C इज इक्वल्स टू 0.01 माइक्रोफैरेड। C is equals to 0.01 microfarad. Then we are having the formula, let R1 is equals to R2 is equals to 1 upon 2 pi FL इंटू सी। बराबर है, FL इंटू सी। यहाँ पे अपन पुट करेंगे वैल्यूज, 2 पाई इंटू FL की वैल्यू कितनी है अपनी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू सी की वैल्यू 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6। वी विल गेट सम वैल्यू हियर विच इज़ नथिंग बट योर 1.591 किलो हर्ट्ज, किलो ओहम, सॉरी, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल्स टू R2। बराबर है। देन यहाँ पे गेन दिया हुआ है, गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गेन के लिए फॉर्मूला है AF इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1, 1 प्लस RF अपॉन R1, और इसकी वैल्यू रहती है अपनी 1.586। तो यहाँ पे आएगा 1.586 इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। तो यहाँ पे आता है 0.586 इज इक्वल्स टू RF अपॉन R1। देन RF इज इक्वल्स टू 0.586 इंटू R1। लेट्स कंसिडर, लेट R1 इज इक्वल्स टू 10 किलो ओहम, R1 is equals to 10 kilo ohm. So RF is equals to 0.586 into 10 to the power 3. We will get 5.86. RF is equals to 5.86 किलो ओहम। जो भी वैल्यूज़ आप लोगों की आई है वो वैल्यूज़ आपको सर्किट डायग्राम निकाल के वहाँ पे जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर में निकाला था वैसे ही सेम निकालना है और वो वहाँ पे पुट करनी है। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द हाई पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज द सेकेंड ऑर्डर। और न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से आप लोगों को समझा। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर की सर्किट डायग्राम कैसी होती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे होता है, उसका गेन कैसा होता है, हाउ टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्टेज सॉरी पर्टिकुलर सर्किट, और उसके बाद में आप लोगों को जो भी वैल्यूज़ गिवन रहेंगे उस हिसाब से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट बैंड पास फिल्टर। थैंक यू सो मच।